अभी आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आसान खिदमत मरकज़ बाकू में हैं और वहाँ पे सेंटर का दौरा कर रहे हैं। From birth registration until death registration, all the public service which our citizens live in life circle, they can get from our Asan service. I mean birth registration, birth certificate, everything. ID card, passport, business license, electric bill, gas bill, all utility services, all services. शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म को आसान खिदमत मरकज़ में दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान में हैं, जहाँ पर दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। This program they gain experience. Okay, very good. Teşekkürler bildiririz. Please sit down. Thank you so much for coming. Thank you very much, Kardesh. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसान खिदमत मरकज़ के दौरे पर मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की और वज़ीर आज़म को आसान खिदमत मरकज़ में दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और इस वक्त आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उर्दू में भी ब्रीफिंग दी गई है। I think we should get so we want to have a pilot project in Islamabad. So I will ask my our ambassador here and our delegation from Azerbaijan is coming to Pakistan inshallah in April. So we can do this homework in the meantime, and we can then sign agreements. We have a lot of skills available, but with your experience, with your knowledge and expertise, we will be very happy to establish the first of its kind in Islamabad. It will be a great, You're visiting Asan Khidmat Center here in Baku, which is a great reflection of my very dear brother, President Ilham Aliyev's foresight and his dynamism. And this Asan Khidmat Center, we have just gone around. It has excellent human resource and most modern gadgetries, and all public utilities, social services are all available here and can be given access within no time. We also visited their startup center, young boys and girls, really, and then also volunteers. So I think all in all, this center is one of the most modern centers I've visited around the globe, and full marks to my dear brother, President Ilham Aliyev, for his very thought-provoking and visionary leadership. Thank you, and I have desired, although we have such centers in Pakistan, alhamdulillah, but of this scale and of this modern technology, we would like to benefit from Azerbaijan's experience, inshallah, and I'll be very happy to have a replica of this in Islamabad. Thank you very much and well done. Mr. Prime Minister, you have a vision of providing facilities to the people of Pakistan. Now, what experiences do we learn from this Khidmat Center? I think, as I said,
we have such centers available in Pakistan. In Punjab, there are few centers and also other places. But I think what is important is that under one roof, all important entities and service delivery entities should be housed in one place, and they should be able to cater for the requirement of the common man without any inordinate delay. And this is what I've seen here today, that it is a fantastic arrangement and fantastic service. We will inshallah replicate this in Pakistan. Thank you. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आसान खिदमत मरकज़ के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है, रज़ाकार अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव दूर अंदेश रहनुमा हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने यूरोपीय यूनियन के GSP+ स्टेटस का हवाला दिया है, जिस पर जजेस ने रिमार्क्स भी दिए हैं। इस पर मज़ीद तफसील जानेंगे यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। बताइएगा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, क्या रिमार्क्स दिए जजेस ने? जी हाँ, आज जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था, उसमें बानी पीटीआई के वकील उज़ैर नज़ीर भंडारी ने अपने जो है वो दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। और अपने दलाइल के दौरान जब वो इस के खिलाफ दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने जो है यूरोपीय यूनियन के कहा कि यूरोपीय यूनियन जो है मिलिट्री कोर्ट्स पर जो है वो जो उनको मिलिट्री कोर्ट्स को अच्छी नज़र से नहीं देखती है। और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात के तराशे जो हैं वो पढ़कर सुनाए। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बुनियादी हकूक जो हैं वो आईनी तकाजा हैं जो किसी बैनुल अक़वामी फायदे से मशरूत नहीं हो सकते हैं। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इस पर जो है उज़ैर भंडारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौक्किल दूसरी बात करते हैं। आपका मौक्किल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे ही बात करूंगा। इस पर उज़ैर भंडारी ने जो है वो मौका इख्तियार किया कि कमरा अदालत के बाहर। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी अपडेट करने के लिए।